I agree. So, good afternoon, everybody. Yesterday, we had discussed about sentence, the definition of the sentence, and two major parts of a sentence. Before I proceed, I would like to summarize what is a sentence. Sentence is a group of words. A group of words that makes a complete sense is sentence. A sentence can be divided into two major parts. They are subject and predicate. Now we shall be starting our new chapter. Today's chapter is kinds of sentences. In English, sentences have been divided into four parts. The sentence in English has been divided into four parts. The names of the four parts are: first, assertive or sentences. Second, interrogative sentences. Interrogative sentences. Third, imperative sentences. And the fourth, exclamatory sentences. So, Hello. Sir. yes. Here welcome. Okay. Now, let us start. As I have told you earlier, there are four kinds of sentences. First, exclamatory sentences. So, first, assertive sentence. Assertive, the spelling. I would like to spell the word assertive. Can you all hear me? Am I audible to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So, there are four kinds of sentences. The first one, assertive sentences or declarative sentences. Assertive, 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 or declarative. The other name of the same sentence is declarative. DECLARATIVE.
Declarative. Declarative. Assertive or declarative sentences. What are these sentences? I would like to define assertive sentence first. A group of words that states or asserts something. Group of words means a sentence. A sentence that states or asserts something. When we say something, that is a statement. Whenever you say something, that becomes a statement. Whenever we say something, that becomes an assertion. तो हमारे द्वारा कुछ भी कहना एक स्टेटमेंट होता है. हम कुछ भी कहते हैं. स्पीकर जब भी कुछ कहता है उस समय वो एक स्टेटमेंट होता है. चाहे वो स्पीकर कोई नाउन हो, प्रोनाउन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, whoever is the speaker. स्पीकर के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा, स्पीकर के द्वारा कुछ भी कहना, that is an assertion. स्टेट, STATE, स्टेट का मतलब ही होता है कहना. और जब भी हम कुछ कहते हैं वो हमारा एक स्टेटमेंट होता है. तो असर्टिव सेंटेंस वो कहलाता है जिसमें कुछ कहा जाता है. When we say something, when we state something, when we assert something, तो कुछ भी कहना एक स्टेटमेंट है. ये जो सेंटेंस होते हैं इनको असर्टिव, डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट्स कहा जाता है. ये तीनों एक ही प्रकार के सेंटेंस के तीन नाम है. असर्टिव सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स. तो असर्टिव सेंटेंस कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करेंगे. I saw a snake on the road. I saw a snake on the road. मैंने सड़क पर सांप देखा. ये स्पीकर के द्वारा कुछ कहा गया है. Something has been stated. Something has been asserted by the speaker. Therefore, it will be called a statement or an assertive sentence or a declarative sentence. Ravi is a hard-working boy. Ravi is a hard-working boy. Ravi मेहनती लड़का है. Ravi is a hard-working boy. Ravi मेहनती लड़का है. Something has been stated, something has been said about Ravi. Whenever something is said, something stated, that becomes a statement. Statement जब होता है, कुछ भी कहना एक स्टेटमेंट है. तो हम जो कुछ भी कहते हैं वो दो रूप में कह सकते हैं, दो टाइप से कह सकते हैं. या तो हमारी बात एक पॉजिटिव सेंस में होगी या हमारी बात एक नेगेटिव सेंस में. फॉर एग्जाम्पल, द स्टार्स आर अनकाउंटेबल. द स्टार्स आर अनकाउंटेबल. तारे अगणनीय है, यानी उनको गिना नहीं जा सकता. स्टार्स आर अनकाउंटेबल. दिस इज अ स्टेटमेंट. इसका जो अर्थ है वो सकारात्मक है.
अगर हम ये बोले नो वन कैन काउंट द स्टार्स, नो वन कैन काउंट द स्टार्स, कोई भी तारों को गिन नहीं सकता, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। पहले वाला जो सेंटेंस था वो एक पॉजिटिव सेंस में था, सेकंड वाला जो है वो नेगेटिव सेंस में। स्टार्स आर अनकाउंटेबल, दैट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, एंड नो वन कैन काउंट द स्टार्स, दिस वन इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट। whenever we say something positive, whenever we say something whenever we say something in a positive sense, उस समय जो सेंटेंस होता है उसे हम अफर्मेटिव बोलते हैं। AFFIRMATIVE, I repeat, AFFIRTIVE, affirmative। affirmative वो स्टेटमेंट जिसका सेंस पॉजिटिव है वो अफर्मेटिव होगा, और वो स्टेटमेंट जिसका सेंस नेगेटिव है वो नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ सेंटेंसेस के थ्रू और भी देखें। आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, पिछली रात मैंने एक मूवी देखी। आई वॉच्ड, मैंने देखी, व्हाट, अ मूवी, कब, लास्ट नाइट। आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। ये जो सेंटेंस है वो एक पॉजिटिव सेंस में है, इसको हम अफर्मेटिव बोलेंगे। एक और देखते हैं। शी कुडंट परफॉर्म वेल, शी कुडंट परफॉर्म वेल, वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। शी कुडंट परफॉर्म वेल, वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। ये जो बात कही गई है वो नेगेटिव सेंस में है, दैट इज यू मे से इट अ नेगेटिव सेंटेंस। तो assertive sentences are of two types. Assertive sentences are of two types. Which are they? Affirmative sentences and negative sentences. So whenever we say something, our sense may either be positive or negative. तो जब भी हम कुछ कहते हैं तो हमारा कहने का जो मतलब है वो पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है और नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। तो जब हम किसी बात को पॉजिटिव सेंस में कहते हैं उस समय वो अफर्मेटिव होती है, और जब उसको नेगेटिव सेंस में बोलते हैं उस समय वो नेगेटिव होती है। तो ये दोनों ही प्रकार के जो सेंटेंस है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, ये दोनों ही असर्टिव है। So assertive sentences or declarative sentences or statements can be divided into these two parts. Now, assertive sentences का एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो ये होता है an assertive sentence always ends in a full stop. अर्थात असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। असर्टिव सेंटेंसेस के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। फुल स्टॉप डॉट होता है जो ये बताता है कि यहाँ पर सेंटेंस खत्म हुआ है। जहां पर डॉट लगाते हैं वो एक फुल स्टॉप होता है। तो असर्टिव सेंटेंस के रिगार्डिंग हमने कुछ बातें कही है। हमारे द्वारा कुछ भी कहना एक असर्शन होता है। जब भी हम कुछ कहते हैं, स्पीकर जब भी कुछ कहता है
कुछ कहना ही अपने आप में एक स्टेटमेंट है। जब हमारा कहना सकारात्मक अर्थ को लिए हुए है, पॉजिटिव सेंस को लिए हुए है, उस समय वो अफर्मेटिव होगा। और जब हमारा कुछ भी कहना नेगेटिव सेंस को लिए हुए है, उस समय वो नेगेटिव होगा। अदर it is in a positive sense or in a negative sense. In both the situations, the sentence will be called an assertive sentence. Hope I'm clear. Now, हम दूसरी टाइप के सेंटेंस की बात करते हैं। मैंने बताया था sentences are of four kinds. The first assertive sentences, जिसके बारे में अभी बात की है। सेकेंड काइंड का जो सेंटेंस है, दूसरी टाइप की जो सेंटेंस है, वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मैं स्पेल करूंगा इसे INTERROGATIVE INTERROGATIVE इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जब हम कुछ कहते हैं तो वो असर्शन होता है। Whenever we say something, that is an assertion or a statement. But whenever we ask something, that becomes a question. जब हम कुछ कहते हैं तो वो असर्शन होता है, वो स्टेटमेंट होता है, तो एक असर्टिव सेंटेंस होता है। लेकिन जब भी हम कुछ पूछते हैं, whenever we ask something, a group of words that asks something, in that case the group of words becomes a question, and where there is a question, there is an interrogative sentence. तो स्पीकर के द्वारा कुछ भी पूछना एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। प्रश्न पूछना शब्दों का ऐसा समूह जो किसी प्रश्न को पूछता है, दैट रेजेज ए क्वेश्चन। शब्दों का ऐसा समूह जो किसी प्रश्न को पूछता है, वह इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। प्रश्न अंग्रेजी में दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं। प्रश्न पूछने के दो तरीके हैं इंग्लिश में। पहला तरीका होता है by using auxiliaries, by using auxiliaries or helping verbs. Auxiliaries, 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 or auxiliary verb, AUXILIARY, auxiliary verb, VERB, auxiliary verb. इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो बाय यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स यू कैन मेक क्वेश्चंस। तो किसी ऑक्सिलरी वर्ब की सहायता से हम प्रश्न बना सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। तो प्रश्न पूछने का एक इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन का पहला तरीका यह है कि हम हेल्पिंग वर्ब के जरिए, हेल्पिंग वर्ब को यूज करके हम क्वेश्चन पूछें। एग्जाम्पल, डू यू स्मोक, डू यू स्मोक, और अंत में क्वेश्चन मार्क। दिस इज अ क्वेश्चन। हैव यू एवर visited a zoo? Have you ever visited a zoo? क्या आपने कभी चिड़ियाघर की सैर की है? This is a question. This question has been asked using a helping verb, have. Have you ever visited a zoo? Did you do your homework? Did you do your homework?
क्या तुमने तुम्हारा होमवर्क किया? दिस इज अ क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड यूजिंग ऑक्सिलरी डिड. कैन यू क्लाइंब अ ट्री? कैन यू क्लाइंब अ ट्री? क्या तुम पेड़ पर चढ़ सकते हो? दिस इज अ क्वेश्चन. द क्वेश्चन हैज बीन फॉर्म्ड यूजिंग helping verb can. So interrogative sentences can be formed in two ways. The first way is by using helping verbs. Now the question is, how many helping verbs are there in English? There are two types of helping verbs in English. First, primary helping verbs or primary auxiliaries. And the second, modal auxiliaries or modal helping verbs. पहले हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बात करते हैं. प्राइमरी ऑक्सिलरीज को यूज करके हम क्वेश्चन बना सकते हैं. यू कैन मेक क्वेश्चंस यूजिंग प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरीज. प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन कौन सी? एक तो डू से बनने वाली. डू जो है वो एक बेस फॉर्म है, एक रूट फॉर्म है वर्ब की. डू से बनने वाली जो वर्ब्स हैं वो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है. डू से कौन कौन सी बनती है? डू, डज एंड डिड. डू, DO डू, डज DOES डज एंड डिड DID डिड. डू, डज, डिड, ये तीनों ही डू से बनती है. डू इसका रूट फॉर्म है. उसके बाद होती है बी से बनने वाली, BEB. बी से बनने वाली ऑक्सिलरीज कौन कौन सी हैं? इज, एम, आर, वॉज एंड वर. आई रिपीट, इज, एम, आर, वॉज, वर. इज, एम, आर, वॉज, वर, इनकी जो रूट फॉर्म है वो है बी. बी से बनती है. और एक होती है हैव से बनने वाली, HAVE, हैव. हैव से बनने वाली ऑक्सिलरीज है या हेल्पिंग वर्ब्स है वो है हैज, हैव, had. Has, have, had. So we have 11 primary auxiliaries. Which are they? Do, does, did, is, am, are, was, were, has, have, had. So these auxiliaries are 11 in number. ये 11 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको यूज करके हम क्वेश्चन बना सकते हैं. वी कैन आस्क अ क्वेश्चन. इससे हम एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो हर? क्या तुम उसे जानते हो? डू यू नो हर? डज शी ओबे द एल्डर्स? डज शी ओबे द एल्डर्स? क्या वह बड़ों की बात मानती है, बड़ों की आज्ञा का पालन करती है? डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे? डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे? क्या तुम कल स्कूल गए थे? इसी तरह से इज, एम, आर, वॉज, वर का भी यूज कर सकते हैं. इज ही एट होम? इज ही एट होम? क्या वह घर पर है? ये क्वेश्चन है. हेल्पिंग वर्ब इसका यूज करके बनाया. एम आई राइट? क्या मैं ठीक हूं? क्या मैं ठीक कह रहा हूं? एम आई राइट? आर यू अनवेल टुडे? आर यू अनवेल टुडे? क्या आप आज अस्वस्थ हैं? ये क्वेश्चन है. हेल्पिंग वर्ब
आर का यूज करके बनाया गया है। Was he in the class? क्या वह क्लास में था? This is a question. The question has been formed using the helping verb was. Were they playing? Were they playing? क्या वे खेल रहे थे? This is a question made by using the auxiliary verb. Have you finished? क्या तुमने काम पूरा कर लिया? Has he returned home? क्या वह घर लौट चुका है? Had he won the game? क्या वह खेल जीत चुका था? तो ये 11 जो है, do, does, did, is, am, are, was, were, has, have, had. These are all auxiliaries, primary auxiliaries, and questions may be formed by using these auxiliaries. Hope I am clear. Now हम बातेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज की। जैसे कि मैंने बताया है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं जो किसी प्रश्न को पूछते हैं, शब्दों का ऐसा समूह that asks a question, जो कि एक प्रश्न पूछता है, that is an interrogative sentence. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह से बनाए जा सकते हैं, एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज का यूज करके। प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन सी है वो मैंने आपको बताया है। दूसरा तरीका है क्वेश्चन बनाने का, वो है दूसरी टाइप की जो ऑक्सिलरीज है वो है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज कौन सी है? विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, might, must, ought to, need, dare, choose to. These are 13 in number. So we have 11 primary auxiliaries and 13 modal auxiliaries or modal helping verbs. So total number of auxiliaries is 24. So remember, there are 24 auxiliaries or helping verbs in English. We can make interrogative sentences by using both primary and modal auxiliaries. किसी भी हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बिगिनिंग में ला करके हम एक क्वेश्चन का निर्माण कर सकते हैं, एक क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का पहला तरीका है कि ऑक्सिलरी का यूज करके इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। दूसरा तरीका है हमारे पास में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का, जो दूसरा तरीका वो है WH वर्ड्स का यूज करके। हम आम बोलचाल की भाषा में WH वर्ड्स बोलते हैं। इनकी जो ग्रामेटिकल टर्म है इनको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस या इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इनको बोला जाता है, लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में और थोड़ी अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इनको WH वर्ड बोलते हैं, क्योंकि इनकी शुरुआत प्रायः WH वर्ड से होती है। तो देखें कि ये WH वर्ड्स कौन कौन से हैं। What, WHAT, what होता है क्या, WHAT what, क्या। Why, WHY, why का मतलब होता है क्यों। When, WHEN, when का मतलब होता है कब। Where, WHERE, where का मतलब होता है कहाँ।
हु, WHO, हु का मतलब होता है कान। WHOM, whom का मतलब होता है किसको। WHOSE, whose का मतलब होता है किसका। whose 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 का मतलब होता है किसका। WHOSE, whose। which, WHICH, which कौन सा। WHICH, which कौन सा। how, HOW, how का मतलब होता है कैसे। हाउ मैनी, कितने। हाउ मच, कितना। हाउ मैनी का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी नंबर के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। हाउ मच, हम किसी अमाउंट के बारे में, किसी डिग्री के बारे में, किसी मात्रा के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस समय कहेंगे हाउ मच, कितना। हाउ मैनी, कितने। हाउ मच, कितना। हाउ ऑफन, कितनी बार, जब हम फ्रीक्वेंसी के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। हाउ ऑफन डू यू टेक दिस टैबलेट। हाउ ऑफन, ये फ्रीक्वेंसी के लिए। हाउ फार, कितना दूर। हाउ फार इज योर होम, आपका घर कितना दूर है। हाउ लॉन्ग, कितनी देर। हाउ लॉन्ग विल यू गिव द क्लास, हाउ लॉन्ग विल यू टेक द क्लास। हम अवधि, समय की ड्यूरेशन के बारे में पूछना चाहते हैं तो हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे। हाउ ओल्ड, यानी कितना बड़ा, उम्र में कितना बड़ा। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर, हाउ ओल्ड इज योर सिस्टर। ये सारे WH वर्ड्स हैं। You can form questions by using these WH words. What is your name? आपका नाम क्या है। Why do you make a noise? तुम शोर क्यों करते हो। When do you get up? तुम कितने बजे उठते हो, कब उठते हो। Who teaches you English? तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। Whom did you see at the door? तुमने दरवाजे पर किसे देखा था। Whose car is that? वह कार किसकी है। Which is your pen? तुम्हारा पेन कौन सा है। How are you? आप कैसे हैं। How many brothers do you have? तुम्हारे भाई कितने हैं। How much sugar will you take? आप कितनी शक्कर लेंगे। How long will you stay here? आप यहाँ कितनी देर रुकेंगे। How often do you take tea? आप कितनी बार चाय लेते हैं। How old is he? वह कितना बड़ा है, वह उम्र में कितना बड़ा है, उसकी उम्र कितनी है। So these are questions. To sum up, interrogative sentences are those which make a question or which ask a question. Questions can be formed in two ways. The first one is by using auxiliaries and the second one is by using WH words. Hope I have been able to make you understand about interrogative sentences. Now we shall talk about imperative sentences. Imperative sentences, that is IMPERATIVE. Imperative sentences. Imperative sentences क्या होते हैं। The sentences which are used to make a request
command, an advice or a prohibition. ऐसे सेंटेंस जिनके द्वारा हम किसी को निवेदन कर सकते हैं, किसी को आज्ञा दे सकते हैं, किसी को सलाह दे सकते हैं, किसी को मना कर सकते हैं. So the expressions of requests, commands, advices and prohibitions can be made by using these type of words, these type of sentences. तो किसी को अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहें तो आप यूज करेंगे एक इंपरेटिव सेंटेंस. किसी को कमांड देना चाहें, कोई ऑर्डर देना चाहें, आज्ञा देना चाहें, तो आप यूज करेंगे एक इंपरेटिव सेंटेंस. किसी को एडवाइस देना चाहें तो आप यूज करेंगे एक इंपरेटिव सेंटेंस. एंड कि किसी को प्रोहिबिट करना चाहे, मना करना चाहे, फॉरबिड करना चाहे, रेस्ट्रिक्ट करना चाहे, तो आप यूज करेंगे एक इंपरेटिव सेंटेंस. इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसका फॉर्मेशन किस तरह होता है, उसके बारे में थोड़ी बात कर लें. टू मेक अ रिक्वेस्ट, हम किसी से कोई निवेदन करना चाहते हैं, उस समय एक इंपरेटिव सेंटेंस यूज करते हैं. कैसे देखें, फॉर इंस्टेंस, काइंडली होल्ड ऑन, कृपया चालू रखें. प्लीज बी क्वाइट, कृपया शांत रहें. प्लीज हैव योर सीट, कृपया अपनी जगह पर बैठें. प्लीज स्विच ऑफ द लाइट्स, कृपया लाइट्स बंद कर दें. प्लीज स्विच ऑन द फैन, कृपया फैन चालू करें. हेल्प मी प्लीज, कृपया मेरी मदद करें. काइंडली स्टे अपडेटेड, कृपया हमेशा अपडेट है, यानी अपने आप को अद्यतन करें. So whenever we want to make a request, we use imperative sentences. If you want to give an order to someone, you may use an imperative sentence. For example, wait till I return. Wait till I return. इंतजार करो जब तक कि मैं लौट कर आता हूं. Open your books, अपनी किताबें खोलें. Circulate this order among the employees. इस आदेश को कर्मचारियों में सर्कुलेट कर दें, उसमें प्रसार कर दें, प्रसारित कर दें. इस आदेश को कर्मचारियों में प्रसारित करें. Circulate this order among the employees. Catch him, उसे पकड़ो. Follow him, उसका पीछा करो. Attack the enemy, शत्रु पर हमला करो. Attack the enemy, शत्रु पर हमला करो. So these types of sentences are used to make commands or orders. तो मैंने जो सेंटेंस बताए उनका यूज करके आप किसी को ऑर्डर दे सकते हैं. उसके अलावा इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करके हम किसी को एडवाइस दे सकते हैं. देखो, एडवाइस ADVISE एडवाइस और ADVICE एडवाइस, इन दोनों में फर्क क्या है? ADVISE एडवाइस जो है वो वर्ब है. एडवाइस का मतलब था सलाह देना,
और ADVICE एडवाइस ये है नाउन, इसका अर्थ होता है सलाह। ADVICE एडवाइस सलाह, ADVISE एडवाइस सलाह देना, एक वर्ब है एक नाउन, इसलिए इसमें स्पेलिंग में कंफ्यूज ना हो। किसी को हम सलाह देना चाहते हैं तो हम इंपरेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करें। वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। ओबे द एल्डर्स, ओबे द एल्डर्स, बड़ों की बात माने। रिस्पेक्ट योर टीचर्स, अपने शिक्षकों का सम्मान करें। ऑलवेज बी पंक्चुअल, हमेशा समय के पाबंद रहें। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बने। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद न करें। हैव पेशेंस, धैर्य रखें। हैव पेशेंस, धैर्य रखें। बी अटेंटिव, एकाग्रचित्त बने। बी अटेंटिव, एकाग्रचित्त बने। Concentrate on what I am saying, concentrate on what I am saying, जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दें। So these are all advices. किसी को अगर हम एडवाइस देना चाहें तो हम एक इंपरेटिव सेंटेंस यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इंपरेटिव सेंटेंस को यूज करते हैं किसी को मना करने के लिए, प्रोहिबिशन के लिए, फॉरबिड करने के लिए, रेस्ट्रिक्शन के लिए। किस तरह से करेंगे थोड़ा देखें। डोंट कट ट्रीज, डोंट कट ट्रीज, पेड़ न काटे। यू आर फॉरबिडन टू कट ट्रीज। यू आर आस्क्ड नॉट टू कट ट्रीज, यू आर रेस्ट्रिक्टेड टू कट ट्रीज। डोंट कट ट्रीज। डोंट प्लक फ्लावर्स एंड लीव्स from the plants. Don't pluck flowers and leaves from the plants. पौधों से फूल और पत्तियां ना तोड़े। You are forbidden, आप इसके लिए प्रतिबंधित हैं, आप ये काम न करें। Put off your shoes outside, अपने जूते बाहर उतारें। Don't make a noise here. Don't make a noise here. यहाँ शोर ना करें। Don't throw waste papers in the park. Don't throw waste papers in the park. पार्क में व्यर्थ के कागज ना फेंकें। तो हम किसी को फॉरबिड करना चाहें, किसी को रेस्ट्रिक्ट करना चाहें, किसी को मना करना चाहे, प्रोहिबिट करें, किसी काम को करने के लिए मना करना चाहते हैं तो आप इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ मोटी मोटी बातों को हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं जिनके माध्यम से हम किसी को प्रार्थना या निवेदन कर सकते हैं, किसी को आज्ञा दे सकते हैं, किसी को सलाह दे सकते हैं और किसी को कोई काम करने से रोक सकते हैं, मना कर सकते हैं। These are all imperative sentences. तो imperative sentences की एक खासियत है, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? Imperative sentence, an imperative sentence always begins with a verb. Imperative sentence verb से चालू होता है। Imperative sentence, in an imperative sentence, the subject is always left out. Why is the subject left out? Because the subject is understood.
whenever we make a request, whenever we make a command, make the command or request to you only, the second person. The there is always second person who receives requests, commands, orders, advices, etc. जब भी हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो वो यू को ही करते हैं। जब भी हम कोई आज्ञा देते हैं, कमांड देते हैं तो यू को ही देते हैं। जब भी हम कोई काम करने से रोकते हैं तो हम यू को ही रोकते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, तो यू अंडरस्टूड होता है, इसलिए यू को मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। हु इज देयर बट इट इज अंडरस्टूड, इट इज हिडन, नॉट मेंशन्ड। इसीलिए इंपरेटिव सेंटेंसेस वर्ब से चालू होते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी मैं स्पेल करना चाहूंगा, EXCLAMATORY। I repeat, EXCLAMATORY, exclamatory sentences। exclamatory sentences क्या होते हैं? A group of words that expresses strong feelings or sudden feelings। हमारे अंदर कुछ सडन फीलिंग्स पैदा होती है, कुछ बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग्स हमारे अंदर पैदा होती है। उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो सेंटेंसेस काम में आते हैं उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं उनके माध्यम से हम स्ट्रांग फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं। स्ट्रांग फीलिंग्स क्या होती है? जब भी हमारे अंदर कोई स्ट्रांग फीलिंग्स पैदा होती है तो वो ये जो स्ट्रांग फीलिंग्स है वो हमारे अंदर सर्टेन चेंजेस ले आती है। अगर आप बहुत ज्यादा खुश हैं, यू स्टार्ट जंपिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आपकी जो आवाज है बहुत हाई पिच पे चली जाती है। तो हम आपके चेहरे के जेस्चर्स पूरे चेंज हो जाते हैं, हाव भाव आपके बदल जाते हैं, क्योंकि वो स्ट्रांग फीलिंग है। आपको नॉर्मल नहीं रहने लगी वो। जब आपका रिजल्ट आया हो, तो एकेडमिक एग्जाम आपने दिया हो, उसका रिजल्ट आया है और आपने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, क्लास में फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई है आपको, दैट टाइम इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेन नॉर्मल। यू विल जस्ट स्टार्ट जंपिंग। तो आप उस समय नॉर्मल नहीं हो सकते। उस समय आपके अंदर एक स्ट्रांग फीलिंग पैदा होती है, जॉय की फीलिंग पैदा होती है। तो हमारे अंदर जो स्ट्रांग फीलिंग्स है वो कौन कौन से? जॉय, खुशी, सॉरो, दुख, SORROW, सॉरो, दुख, एंगर, गुस्सा, एम्बेरसमेंट, एक झुलाहट पैदा होती है हमारे अंदर। और हमारे अंदर कभी कभी बहुत ज्यादा हम भाव विभोर हो जाते हैं, किसी को ब्लेसिंग देते हैं। बहुत ज्यादा अगर हम किसी से गुस्सा हो जाते हैं तो हम किसी को कर्स, श्राप दे देते हैं। ये सारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। तो इन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को जिन सेंटेंसेस के जरिए एक्सप्रेस किया जाता है वो सेंटेंसेस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कल मैंने सवाल किया था कि ये अलास और ये सब चीजें क्या है। ये अलास और इन चीजों का यूज इन सेंटेंसेस में किया जाता है अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, हमारे अंदर पैदा होने वाली सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए इन इंटरजेक्शंस का यूज किया जाता है। सो किस तरह से इन सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, किस टाइप के सेंटेंस होते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल्स के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करें।
What a beautiful flower there is. What a beautiful flower there is. कितना सुंदर फूल है. This sentence expresses the feeling of surprise. के अंदर एक आश्चर्य का भाव पैदा हुआ है जो इस वाक्य के माध्यम से प्रकट हो रहा है. What a beautiful flower there is. कितना सुंदर फूल है. How lucky you are. How lucky you are. तुम कितने किस्मत वाले हो. That is also a feeling of surprise and it has been expressed by an exclamatory sentence. How nice your mom is. How nice your mom is. तुम्हारी माँ कितनी अच्छी है. That is a mixture of joy and surprise. But there is an exclamation in the sentence. It expresses your strong feeling, whatever feeling you have, whether the feeling of joy or whether the feeling of surprise, whatever the feeling is. But it is expressed by an exclamatory sentence. Alas, alas, I am ruined. Alas, I am ruined. R-U-I-N-E-D. Alas, I am ruined. अरे मैं तो बर्बाद हो गया. This is a feeling of nervousness. This is a feeling of disappointment. This is a feeling of sorrow. You are sorry to say. You are extremely sad speaking this. ये कहते हुए आप बहुत महसूस कर. Alas, I am ruined. अरे मैं तो बर्बाद हो गया. So this sentence expresses sorrow. Hooray! Have won. Hooray! Have won. हम जीत गए. ये जो है वो this is an expression of joy. The expression of joy has been expressed by an exclamatory sentence. Wow! Wow! This is an interjection. What a beautiful dress you have. What a beautiful dress you have. तुम्हारा ड्रेस कितना सुंदर है. May God bless you. भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे. May you live long. तुम लंबी उम्र जियो. Have a nice journey. तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो. Good luck. आपकी किस्मत साथ दे. All the best. हमेशा तुम्हारा साथ. So these sort of sentences express our feelings like joy, pleasure, disappointment, embarrassment, anger, etc. So there are 4 kinds of sentences: statement or assertive sentences. The first one assertive sentences, the second one interrogative sentences, the third imperative sentences, and fourth exclamatory sentences. Deep sir. मुझे लगता है कि सही अब क्वेश्चन और ले लेना चाहिए. Yes, yes. थैंक्स अ लॉट सर. आज का लेक्चर भी बहुत एम्फेटिक रहा हमेशा की तरह. Well, sir. सो फ्रेंड्स, अब आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. रेज हैंड्स करिए, वरना अगर क्वेश्चंस नहीं आए तो फिर हम जल्दी से फिर मीटिंग को ऑफ कर देंगे. लगता है कि आज कोई क्वेश्चन. I think there is no question. हाँ, तो I think यहाँ पर संदीप, मैं थोड़ा यहाँ बताना ये चाहूंगा सब लोगों से सर कि अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, आप हो सकता है सार्वजनिक रूप से पूछना. मैं थोड़ा सा
अच्छा महसूस कर सकते हैं। लोग 6.1 आए हैं सर पूछने Yes, के लिए। प्लीज। आपको बीच में रोक रहा हूँ। No problem. नोकिया 6.1 प्लीज क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी, नोकिया 6.1 जैन सर, ये खुद से अनम्यूट कैसे हो रहे हैं सब लोग? मयंक वर्मा क्वेश्चन पूछिए, अनम्यूट हैं आप। यस सर। सर गुड इवनिंग सर। गुड सर ये इवनिंग। मैंने सर लिखते हुए इंट्रोगेटिव सर जैसे आपने हु व्हाट ये सब सर उस सब्जेक्ट को आएगा सर जब हम दूसरा लिखेंगे? हु व्हाट, ये जो सेंटेंस मैंने बताए हैं, हु और व्हाट ये सब्जेक्ट नहीं है। जी सर। सब्जेक्ट इज ऑलवेज दैट। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि हु इज योर क्लास टीचर, यहाँ पर हु जो है वो सब्जेक्ट है। यस सर। जब हम पूछते वेयर डू यू लिव, यहाँ पर वेयर सब्जेक्ट नहीं है। यस सर। वेयर डू यू लिव, इसमें वेयर सब्जेक्ट नहीं है, यू वो सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास में जो ऑलरेडी जो ग्रुप्स हैं क्लब वगैरह के, आरसी कंट्रीब्यूटर्स वगैरह के, ये जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें ट्रैफिक न बढ़े, तो आप हमेशा ये करें कि कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है मुझे ऑडियो में या टेक्स्ट मैसेज में मेरे पर्सनल चैट पर आप भेज दें और मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो मुझे लगता है वो ज्यादा कन्वीनियंट आपके लिए भी रहेगा और मेरे लिए भी रहेगा। पूछिए भाई, हेलो वाले क्वेश्चन पूछिए। हेलो मत बोलिए, केवल क्वेश्चन पूछिए अपना। गुड इवनिंग सर। उमा सर, आप अपना नंबर बताइए ना। नंबर, यस प्लीज नोट डाउन माय नंबर। 9829 यस 30 जी 82 8277। I repeat 9829 जी I repeat जी 9829308277। थैंक यू सर। तो आप मुझे पर्सनल चैट पे यस 98293027 नंबर याद सर। कह रहे थे भी अगर क्वेश्चन जैन सर, आप मीटिंग एंड कर दीजिए मेरे ख्याल में लगता है। लोग क्योंकि सर लोग डिसिप्लिन कोई रहना ही नहीं चाहता एक्चुअली। सही बात है। तीसरी बात ये है, इनडिसिप्लिन जहाँ हुआ वहाँ फिर मजा नहीं है।